Hello friends, welcome to ISMET. This is our YouTube's quick series, Public Administration, and today we will see evolution of public administration as a discipline in a very quick manner, right? So let's start. देखिए public administration emerged as a distinct academic discipline in late 19th century when after 1887 वुड्रो विल्सन्स essay, ठीक है. This essay argued that public administration should be studied separately from political science. Earlier it was studied along with political science, but the Woodrow Wilson's essay of 1887 argued that the public administration should be read separately. क्यों, वो आगे देखते हैं. Evolved from a branch of political science to an independent interdisciplinary applied social science. सोशल साइंस. हम बात तो कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो फिर ये सोशल साइंस कहाँ से आया? देखिए, सोशल साइंस का मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से इवॉल्व किया, हम इन स्लाइड्स में जैसे जैसे हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ मूविंग मोर टूवर्ड्स सोशल साइंस. ठीक है ना? देखते हैं आगे कैसे. फर्स्ट फेज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एज अ डिसिप्लिन बनने के फेज में आया, वो था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी. डाइकोटमी को अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सेपरेशन मीन्स व्हाट इट सेड इज कि देखिए, पॉलिटिकल मास्टर्स का जो काम है, ऑन द अदर हैंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. Political masters, what is their prime objective? Their prime objective is to policy formulation, and executive's prime objective is policy execution. People demand from their political masters, right? And based on this demand, it is the duty of the political masters to frame the policies according to the demand of the people. Now, when the policies are framed, then they are being sent to executive for its implementation, right? So Woodrow Wilson said that since these two jobs are different, so these two jobs should be performed differently and should be studied differently also, because here the main job is formulation and here the main job is execution. So when both the things are different, so both the things should be read separately. This is the first reason that Woodrow Wilson gave. Second, Wilson said that the political master's job is to formulate and their job is to execute, right? He said that it should not happen that political masters should put their emphasis on the work of executive. Means he said
that there should not be any political interference in the execution of the policies. The policies should be independently executed. ठीक है, ताकि जो पॉलिसी बनी है, जैसी बनी है, वो अपने लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट हो पाए. ये था मेन पर्पस इसके पीछे. समझ गए? तो इसलिए इसको उन्होंने सेपरेट करने की बात करी. तो यहां से हम देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ एकेडमिक्स. यहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की शुरुआत होती है. इससे पहले ये पॉलिटिकल साइंस के साथ ही पढ़ा जाता था. अलग अलग करने के पीछे पर्पस, पॉलिटिकल साइंस का काम है फॉर्मुलेट करना, इनका काम है एग्जीक्यूट करना. और दूसरा, कहीं इन दोनों का किसी के भी ऊपर किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस ना आ जाए, इसलिए इन दोनों को अलग करना चाहिए और इनको अलग ही पढ़ना चाहिए. ठीक है, ये है फर्स्ट फेज. Advocated separation of politics, policy making and administration, that is execution. Established value neutral and scientific basis of the discipline. He said कि जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक डिसिप्लिन बनेगा, इसको इसी के ही हिसाब से पढ़ना चाहिए. इसमें इसी की ही थ्योरीज को डेवलप करो, इसी की ही चीजों को डेवलप करो. ठीक है, दे शुड बी साइंटिफिक. ठीक है, दे शुड बी साइंटिफिक. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फेज. दिस इज द सेकेंड फेज. अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, अगर कोई भी डिसिप्लिन शुरू होता है ना, तो वो एज इट इज ऐसे ही चलता नहीं जाता. भाई आज एक डिसिप्लिन शुरू हुआ, आज एक सब्जेक्ट शुरू हुआ, वो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी उसमें मॉडिफिकेशंस के वो एज इट इज चलता जाए, जैसा पहले दिन बना वैसा ही चलता जाए, ये पॉसिबल नहीं है. टाइम के साथ मॉडिफिकेशंस आते हैं. ठीक है, इसीलिए इस डिसिप्लिन के अंदर भी बहुत सारे फेजेस आए. तो फर्स्ट फेज हमने देख लिया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई. अब हम देखते हैं कि इसका सेकंड फेज क्या था. सेकंड फेज में इसमें क्या चेंजेस आए. इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यहां पे प्योर साइंटिफिक मेथड्स, दूसरा यहां पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि इन्होंने क्या बोला कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना है. इनका काम है हैंड्स को चलाना, ना कि ब्रेन को चलाना. तो सेकंड फेज में क्या बोला गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को हमें इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि देखिए, इसके अंदर जो भी काम होंगे, वट एवर वर्क्स विल बी डन विद इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर सिंपली एग्जीक्यूशन जॉब्स, है ना. उसमें कहीं पे दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है. भाई आपको टास्क दे दी, इसको करो, बस करो, बात खत्म, है ना. तो इस फेज में क्या बोला गया कि जब ब्रेन चलाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, तो क्यों ना हम ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बना दें, ऐसे यूनिवर्सल मेथड्स, कुछ यूनिवर्सल ऐसी चीजें बना दें, यूनिवर्सल यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह इक्वली अप्लाई हों, कि अगर ये जॉब करनी है
तो ये जॉब ऐसे ही होगी। अगर आपको पेन बनाना है तो पेन बनाने के प्रोसेस ये इसकी लिस्ट है कि पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। ये फिक्स है, ठीक है, कि हम एक ऐसे रूल्स बना दें, ऐसे हम सिस्टम्स बना दें कि जहां पे ये चीजें हो जाएं फिक्स, ठीक है। तो यहां पे इस फेज में इन्होंने ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के बनाने की कोशिश करी कि मैनेजमेंट मतलब कहीं भी मैनेज करनी है तो ये फिक्स चीजें हैं, आपको ये चीजें करनी है, मैनेजमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे बड़े स्कॉलर का नाम आता है वो आता है F.W. टेलर। ये सबसे बड़े स्कॉलर हैं इसके, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर देखिए, एम्फेसिस ऑन डिस्कवरिंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसके बाद एक स्कॉलर आते हैं लूथर गुलिक, लूथर एंड गुलिक, ठीक है, लूथर गुलिक एंड उर्विक। ये स्कॉलर्स आते हैं, ये एक थ्योरी देते हैं, ये एक सिस्टम देते हैं पोस्ट कॉप का, ठीक है। यहां पे आया पोस्ट कॉप। पोस्ट कॉप भी फिक्स चीजें हैं कि बॉस अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो आपको ये चीजें करनी है बस, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना। ये था इस फेज का मतलब। फिर इसके बाद आता है थर्ड फेज। अब ये फेज बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो गया, यहाँ पे मतलब कोई इनोवेशन नहीं है, कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस सीधा सीधा आपको टास्क दिया है, जाओ अपने ऑफिस जाके सीधा ये काम निपटाओ और अपने चुपचाप घर आ जाओ। बहुत ही बोरियत, बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट फेज जो है वो इसके अगेंस्ट में आएगा, जहां पे अब ये फिक्स चीजों को करने के बजाय अब ये ह्यूमंस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड फेज आया एरा ऑफ चैलेंज। एरा ऑफ चैलेंज, चैलेंज किसको? चैलेंज टू द फिक्स्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चैलेंज टू द फिक्स्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर हम इसको चैलेंज करेंगे तो हम किसको देखेंगे फिर? ह्यूमन को। ह्यूमन यानी कि बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो इस फेज में शुरू होता है आपका बिहेवियरलिज्म। यहां से ह्यूमन सेंट्रिक बात होनी शुरू होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आ चुका है? डाइकोटोमी आ चुकी है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन की कि दोनों को सेपरेट करो और साइंटिफिक चीज़ों को डेवलप करो। सेकेंड फेज में इसके अंदर और क्या अटैच हो गया? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अटैच हो गए। अब थर्ड फेज में इस सब्जेक्ट के अंदर और क्या अटैच हो जाएगा? यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज भी अटैच हो जाएंगी, ठीक है। क्रिटिक ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, उनको क्लासिकल मॉडल्स बोलते हैं, जो सेकंड फेज में बने थे उनको क्लासिकल मॉडल्स बोलते हैं। शिफ्ट टू ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। हर्बर्ट साइमंस बाउंडेड रैशनैलिटी चेंज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। बाउंडेड रैशनैलिटी इन अ वेरी क्विक फॉर्म क्या बोलती है कि ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट इन डिसीजन मेकिंग। कोई ना कोई गलती होगी होगी, कोई ना कोई कमी छूटेगी छूटेगी डिसीजन लेने में। आप 100% परफेक्ट डिसीजन ह्यूमंस नहीं ले सकते, ये हर्बर्ट साइमन का कहना है। डिसिप्लिन बिकेम मोर एम्पिरिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब पहले फेज में क्या था? सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक चीजें आई, फिर फिक्स्ड आई। यहां पे देखो, यहां पे हम कह सकते हैं ना कि साइकोलॉजी भी एंटर हो गई सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो इसीलिए इसको बोला गया कि ये मोर इंटरडिसिप्लिनरी बन गया। इससे पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट था वही था। अब इसमें साइकोलॉजी भी एंटर हो गई, ठीक है ना। अब यहां पे बात होने लगी ह्यूमंस की, ठीक है। अगर ह्यूमंस की बात होने लगी तो यहां पे ह्यूमंस के बिहेवियर की बात होने लगी, प्लस ह्यूमंस के डिसीजन मेकिंग की बात होने लगी। फिर आया फोर्थ फेज, आइडेंटिटी क्राइसिस।
आइडेंटिटी क्राइसिस। भाई फोर्थ फेज में फर्स्ट नंबर 1 क्या बोलने लगे कि जब आपका सब्जेक्ट जो है वो साइको है, जब आपके सब्जेक्ट जो है वो मैनेजमेंट है, तो फिर ये अलग सब्जेक्ट है ही नहीं। मेनली तो मैनेजमेंट पे फोकस है ना। जब आपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट से ही चीजें ले ली, मैनेजमेंट सब्जेक्ट को ही पढ़ाए जा रहे हो, तो ये एक अलग सब्जेक्ट तो आपका हुआ ही नहीं। एक तो आ गई इसमें ये आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, अब जब ये आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया तो फिर दूसरा शुरू होता है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज को देखो, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करो, सबके एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करो, और इन सब के एडमिनिस्ट्रेशंस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको अलग उठा लो और इनको अप्लाई करो, सो दैट कि मैनेजमेंट जो है वो परफेक्ट बन सके। ठीक है ना। यहां पे जब आइडेंटिटी क्राइसिस आया तो यहां पे बात होने लगी कंपैरेटिव एनालिसिस की। इन्होंने बोला कि भैया कंपेयर करना शुरू कर दो सारों के एडमिनिस्ट्रेशंस को, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हों उसको ले आओ। कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एम्ड एट रेलेवेंस इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश अभी नए नए आजाद हुए थे। ठीक है, मैनी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड गॉट इंडिपेंडेंट रिसेंटली। नाउ व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंट, डेफिनेटली they need what? They need development, and for that what is needed? A efficient administrative system. And to get that, they said compare the world's administrations, compare the successful countries administrations, pick the best practices from there and apply to the newly independent countries so that they can also get developed, so that development can happen over there. ठीक है, ये यहां का मेन पर्पस था। फ्रेडरिक्स ने मॉडल दिया प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि एक थी ओल्ड सोसाइटी, ठीक है, जिसको प्रिमिटिव सोसाइटी बोलते हैं, और एक है मॉडर्न सोसाइटी। इसको ओल्ड नहीं, इसको प्रिमिटिव सोसाइटी, और एक है मॉडर्न सोसाइटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी क्या होती है? ये इन दोनों के बीच की होती है, जिसमें कुछ कुछ फीचर्स इसके भी होंगे और कुछ कुछ फीचर्स इसके भी होंगे। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी एक ट्रांजिशनिंग सोसाइटी होती है। ये ट्रांजिशनिंग फेज होता है किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री का। ठीक है, ये फ्रेडरिक्स ने मॉडल दिया था। डिबेट्स ऑन ऑटोनॉमी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस इंटेंसिफाइड। यहां पे सब्जेक्ट की एक अपनी आइडेंटिटी के ऊपर क्राइसिस था। वो लोग बोलने लगे पॉलिटिकल साइंस वाले कि जब तुम्हारे पास कुछ अलग तो है नहीं, तो तुम अपने आप को एक अलग डिसिप्लिन नहीं बोल सकते। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी उठ खड़े हुए, उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं बोल सकते, हम प्रूव करते हैं, ऐसे बोलो। तो फिर आया इसका फिफ्थ फेज, जहां इसकी आइडेंटिटी को बचाया गया। ठीक है, फिफ्थ फेज में इसकी आइडेंटिटी को सेव किया गया। एक मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे उन्होंने इस डिसिप्लिन के गोल्स को क्या किया? रीडिफाइन किया। दे रीडिफाइंड द गोल्स ऑफ द सब्जेक्ट। कि अब तक तो सब्जेक्ट के गोल्स ही डिफाइन नहीं थे, तो मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या करा? इन्होंने अब सब्जेक्ट के गोल्स को रीडिफाइन करा कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू। तो इन्होंने क्या गोल्स दिए? इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया? इन्होंने दिया कि हम सोशल इक्विटी लाना चाहते हैं, हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन लाना चाहते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज को, नॉर्मेटिव वैल्यूज को लाना चाहते हैं।
यहां पे की थिंकर्स कौन कौन थे? ड्वेट वाल्डो, फ्रैंक मैरिनी, ठीक है, ये यहाँ के प्रोमिनेंट थिंकर्स थे इस फेज के। इस फेज में क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो गोल्स थे उनको रीडिफाइन किया गया, सो दैट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लाने के पीछे का पर्पस सॉल्व हो सके। अब तक ये जो भी काम कर रहा था वो बाकी सब्जेक्ट भी कर रहे थे, बट फ्रॉम हियर इट टुक अ न्यू टर्न which is different from other subjects। यहां से चीजें क्लियर समझ में आने लगी कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे सोशल इक्विटी, पार्टिसिपेशन, नॉर्मेटिव वैल्यूज, इन चीजों को ये लोग इनकलकेट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो इसलिए इसको अलग से पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। अदरवाइज अब तक क्या हो रहा था भाई, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, वो एमबीए में, मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी पढ़ाया जाता है, आप क्या अलग कर रहे हो, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। फिर आप जो भी ह्यूमन बिहेवियर और ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो वो तो साइकोलॉजी वाले पहले ही पढ़ रहे हैं, आप क्या अलग कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ें, इसको यहां से इसको एक नई शेप मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा वो इससे भी ज्यादा रिफाइंड आएगा, उसमें क्या होगा अब वो देखते हैं। नेक्स्ट फेज है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम फेज। इसमें शिफ्ट टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। देखिए, जो फिफ्थ फेज था, यानी कि जो एनपीए वाला फेज था, यहां पे पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी, डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही थी। लेकिन सिक्स्थ फेज में बात होने लगी सिटीजन एज कस्टमर। यहां पे मैनेजमेंट जो है वो स्टिल एज ए गवर्नमेंट, एज ए रूलर की तरह चल रहा था, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटाइज्ड, पीपल पार्टिसिपेशन था, लेकिन कहीं ना कहीं सोच जो है वो ऐसी थी कि हम रूल करने वाले हैं तो हमें ये लोगों को देना है। लेकिन in the sixth phase, the thought process of public administration subject changed. Here now it said कि we are not rulers, rather we are service providers. To whom? Not to the subjects, to the customers. Here the subject said that whatever functions an administration has to perform, they should be planned, they should be executed in a way that for whom the administration is working should be treated as a customer to them. Customer means now the administration became more like a market। और मार्केट की सबसे खास बात क्या है कि यहां पे कंपटीशन है, ठीक है, यहां पे अच्छी सर्विस डिलीवरी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड है। अल्टीमेटली यहां पे क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अल्टीमेटली इट इज व्हाट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये एनपीएम के अंदर आया।
Public administration influenced by business and economics. Citizens for sidelining public values and welfare focus. ठीक है, criticized for sidelining public values and welfare focus. ये एक 7th फेज है, ऑल्दो बुक्स में, कई बुक्स में ये नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि ये एक 7th फेज है जो एनपीएम से भी ज्यादा एडवांस है। यहां पे क्या हुआ, राइज ऑफ पब्लिक वैल्यू थ्योरी, पब्लिक वैल्यू एंड digital era governance. What we say is e-governance. Collaborative network-based governance models focus on sustainability, citizen engagement, and global practices. E-governance changed the whole governance systems, rather governance methods. ई गवर्नेंस आने के बाद ट्रांसपेरेंसी एनहांस हुई, पार्टिसिपेशन एनहांस हुआ, अवेलेबिलिटी एनहांस हुई, एक्सेसिबिलिटी एनहांस हुई, अफोर्डेबिलिटी एनहांस हुई। ई गवर्नेंस आने के बाद सर्विस डिलीवरी बहुत जबरदस्त तरीके से सुधर गई। तो कह सकते हैं कि ये एक 7th फेज भी हो सकता है, ठीक है। अब करंट स्टेटस क्या है, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड इन नेचर। सेकंड, ये एक कोर सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज में या फिर पब्लिक पॉलिसी स्टडीज में। इट लिंक्स थ्योरी विद रियल वर्ल्ड गवर्नमेंट्स एंड रिफॉर्म्स। ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को लिंक करता है आज ये सब्जेक्ट, तो इसलिए आज ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व इनटू अ डायनेमिक इंटरडिसिप्लिन, अडैप्ट्स continuously to societal, technological, and governance challenges. Adapts continuously. This subject is dynamic in nature because it adapts continuously to the changes in society, technology, governance, etc. Central to improving state capacity and service delivery. Central to improving the state's capacity and service delivery. This is the conclusion part. Right? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।